Hello guys, welcome to today's session in Concept. Today we will be learning about how you can choose perfect strike price for your option trading. But before that, if you are new here, you can go in the description. There is a link below. With the help of that, you can download and install Concept web application. After successful registration, you will get some free tools here that you can use for your trading. On the application, there is a learn section. So in the video library, it is a pool of videos. We have made multiple videos for you based on Pro Plus tools as well as on various strategies. So you can go and watch them. They are available in multiple languages like English, Hindi, Gujarati, Marathi and Tamil as well. Right now, at any point of time, if you guys are having any kinds of doubts or query, so you can go in the profile section, and in the support you will get our contact number as well as email ID, so you can contact us and we will be there to sort your queries out. Right, so let's start today's session. That is how you can choose perfect strike price. Either you are a seller or either you are a buyer in options trading. Right, so for that, in the application, I am opening my option chain. So you have to go in the track, and then there is an option in the third, that is option chain. So you have to open that. Now you can see, first of all, you have to select your symbol here. For example, you can select your indices, you can select your stocks. If you are a beginner, okay, and you want to do the options trading, so I'll suggest you can go with the indices, because first of all, in indices you will get some benefits. First benefit is that the first benefit will be there is good liquidity in indices. Okay, so either you are going with Nifty, Bank Nifty, Mid Cap Nifty or Infin Nifty. First thing is that you will get good liquidity here. It means more number of participants, right? The second thing is that not easily manipulated. Okay, not easily manipulated. What I mean by that, it means there must be some stocks, ठीक है, अबाउट विच अ थर्ड पर्सन नोज बेटर देन मी. ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक होगा कि किसी के बारे में किसी को ज्यादा पता होगा उस स्टॉक के बारे में, राइट, उसने ज्यादा स्टडी करी होगी. बट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी सो मच, यू कैन trade in it. There is less manipulation, you can say. And the third thing is that manageable lot साइज. ठीक है, तो मैनेजेबल लॉट साइज इट मींस, ठीक है, आपको यहाँ पे जो लॉट साइज मिलेगा, ठीक है, वो आपको 25, 15, 40 का लॉट साइज मिल जाएगा. सो इट इज स्टिल मैनेजेबल. जबकि इफ यू विल गो विद द स्टॉक्स, तो वहां पे आपको दिखेगा कि किसी का जो स्टॉक प्राइस लॉट साइज है वो 5500 का है, किसी का लॉट साइज 4000 का है, राइट. सो इट विल टेक लार्ज मार्जिन, राइट, तो आपको वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, राइट. सो यू कैन गो विद द इंडाइसेस फर्स्ट इफ यू आर अ बिगिनर. ठीक है, अगर आपको ज्यादा टाइम हो चुका है, देन यू कैन चूज स्टॉक्स एज पर योर प्रेफरेंस एज वेल, राइट. नाउ you can select your expiry as well, right. So you can select your expiry as well. For example, you are going with a weekly expiry or monthly expiry, right. So right now I will go with the monthly weekly expiry. क्यों? क्योंकि ज्यादा पास के एक्सपायरी को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा लिक्विडिटी विल बी देयर. ठीक है, तो ये मेरी वीकली एक्सपायरी. यहां पे आप देखोगे ऑप्शंस में मेरे को मेरा ऑप्शंस का जो ऑप्शन चेन है मेरी, इट ओपनड एज पर माय वीकली एक्सपायरी. नाउ आई कैन सी इन द राइट हैंड साइड, ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड में आई कैन सी माय कॉल. ठीक है, एंड इन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन सी ऑल द पुट्स. ठीक है, यहां पे मैं उनके प्रीमियम देख रहा हूं, आईवी देख रहा हूं, वॉल्यूम देख रहा हूं एंड द ओपन इंटरेस्ट, राइट. नाउ व्हाट इज द बेसिस, ठीक है, ऑन विच वी विल सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइसेस. सो टुडे वी विल बी कवरिंग डेल्टा. ठीक है, डेल्टा के बेसिस पे वी विल बी कवरिंग कि हाउ यू कैन सेलेक्ट योर स्ट्राइक प्राइस, राइट. नाउ कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज डेल्टा. पहले डेल्टा है क्या ये तो पता चले. ठीक है, नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट डेल्टा, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं तो डेल्टा क्या होता है. डेल्टा इज लाइक हाउ मच योर ऑप्शंस प्रीमियम विल चेंज. ठीक है, जो आपका प्रीमियम होगा, हाउ मच इट विल चेंज इफ देयर विल बी 1% चेंज इन योर, यू कैन से अंडरलाइंग एसेट. अंडरलाइंग एसेट में कितना चेंज आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, तो निफ्टी का अगर स्पॉट चार्ट है, तो उसमें अगर 1% का चेंज आता है, राइट, तो हाउ मच माई प्रीमियम विल चेंज, दैट विल बी गिवन बाय द डेल्टा. तो वो डेल्टा से हमें पता चलेगा. ठीक है, एक दूसरी डेफिनेशन होती है, तो डेल्टा इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, डेल्टा क्या है, डेल्टा प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन और माय पुट ऑप्शन, ठीक है, तो हाउ मच प्रोबेबिलिटी इट हैज टू एक्सपायर इन द मनी. वो इन द मनी में एक्सपायर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ माय डेल्टा एज वेल. ठीक है, अब चलते हैं वापस से ऑप्शन चेन में. सो अगेन आई एम ओपनिंग Concept application here, right. So this is my Concept application. Now you can see,
राइट नाउ माय निफ्टी इज ट्रेडिंग एज 25,038, ठीक है। इट मींस 25,038 पे ट्रेड कर रहा है, तो सबसे नियरेस्ट जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है 2550, 25,050, सो दैट विल बी माय एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगी, एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगी, राइट। नाउ इन द एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर ये मेरी है, तो इट मींस अगर मैं यहां पे देखूं दोनों साइड पे, यू कैन सी ईदर इन द कॉल साइड और ईदर इन द पुट साइड, यू कैन सी योर डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली, you can see delta here, तो डेल्टा आपका कितना है, इन द कॉल साइड इट इज 0.48 एंड इन द पुट साइड इट इज 0.5। इट मींस जो आपका एटीएम स्ट्राइक ऑप्शंस होता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, इट हैज ऑलवेज डेल्टा ऑफ 0.5, अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास होता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट अनसर्टेन स्ट्राइक प्राइस है, राइट, बिकॉज इसमें हल्का सा भी चेंज होगा तो इट कैन गो आउट ऑफ द मनी, और हल्का सा चेंज होते ही इट कैन गो इन द मनी एज वेल। सिमिलरली इन द पुट साइड ऑल्सो, हल्का सा इसमें चेंज होगा तो इट कैन गो आउट ऑफ द मनी एंड इट कैन गो इन द मनी एज वेल। सो दैट इज व्हाई इट इज 0.5 डेल्टा है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटीएम, ठीक है, एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस है एक्सपायरिंग इन द मनी इज 50-50, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, राइट। अब कुछ बोलेंगे कि इफ आई एम टेलिंग यू कि 0.5 होता है तो व्हाई इट इज 0.48 इन द कॉल साइड एंड व्हाई इट इज 0.52, ठीक है, इन द पुट साइड, बिकॉज राइट नाउ यू कैन सी माय फेयर प्राइस इज 25,038, तो स्ट्राइक प्राइस अगर मेरा 25,038 है, इट मींस इट इज क्लोजर, कहां मेरे क्लोजर है, सो ये मेरे ज्यादा पास है, मेरे जो आप 25,000 से ज्यादा पास है, राइट, इन कंपैरिजन टू 25, सॉरी, इट इज मोर क्लोजर टू कहां पे, 2550 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, और 25,000 के थोड़ा सा दूर है, 38 पॉइंट ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यहां का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0.48 है, 0.2%, 0.2% से कम है, और यहां पे 0.02% से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई स्ट्राइक ऑप्शंस, ठीक है, तो व्हाट विल बी द थिंग जो मुझे यहां पे देखनी है, तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सेलर्स, ठीक है, सेलर्स हु आर गोइंग विद द नेकेड ऑप्शंस के साथ, हु ट्रेड्स विद द नेकेड ऑप्शन, वो क्या कर सकते हैं, तो एज अ सेलर व्हाट आई कैन डू, आई वांट वो प्रीमियम मेरे को चाहिए, ठीक है, जिनमें मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो, व्हाट द सेलर्स वांट, दे वांट देयर जो भी प्रीमियम है, ठीक है, या फिर जो भी स्ट्राइक प्राइस है, इट शुड बी एक्सपायर आउट ऑफ द मनी, राइट, एंड दैट इज व्हेन दे विल गेट द बेनिफिट। तो अगर उनको चाहिए कि वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो, सो इट मींस व्हाट दे वांट प्रोबेबिलिटी जो उनको चाहिए, सो दे वांट प्रोबेबिलिटी लेस, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लेस चाहिए। अब मैं देख रहा हूं कि व्हेन आई विल गो, मैं अगर नीचे की साइड पे जाता हूं, यहां पे जितना मैं ऊपर जाऊंगा तो यू कैन सी माय डेल्टा इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0.48, 0.4, 0.32, 0.25, 0.19, मेरा डेल्टा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो एज अ सेलर व्हाट आई वांट, I will trade in out of the money options when I'm going in the call side. Similarly, out of the money options when I'm trading in the put side as well. ठीक है, क्यों? Because the value of the delta will be low there. It means मेरा अगर underlying asset ज्यादा भी move करता है, so still there will not be much change in my premium. ठीक है, तो वहां पे मेरे प्रीमियम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो एज अ सेलर आई विल गो विद द ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड करूंगा, एंड ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड करूंगा थोड़ा सा नीचे। सो व्हाट विल बी द परफेक्ट लेवल फॉर मी, सो आई कैन गो विद द डेल्टा विद 0.15 टू 0.20 के बीच में जिसका डेल्टा मेरे को दिखेगा, आई विल गो विद दैट ऑप्शंस, ठीक है। तो मेरे को कौन सा दिख रहा है, आई कैन सी दिस इज माय 0.14 दिख रहा है एंड देन 0.25 दिख रहा है, राइट। सो इन द मिडल ऑफ दैट आई कैन गो विद 25,250 का मैं ले सकता हूं, और इधर आई कैन गो विद 25,300 एज वेल, ठीक है। सो आई इफ आई एम ट्रेडिंग इन दी कॉल साइड, ओके, मैं कॉल साइड को सेल कर रहा हूं, सो आई कैन गो विद दिस ऑप्शन एंड आई कैन गो विद दिस ऑप्शन, इधर दिस और इधर दिस, राइट। अब थोड़ा सा मेंटालिटी अगर मैं आपको बताऊं, तो व्हेन आई एम टेकिंग द 50 लेवल, ठीक है, और 100 लेवल, कैसे, फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन दिस स्ट्राइक प्राइस देयर इज 25,150, ठीक है, देन 25,200, 25,250। सो जनरली व्हाट वी कैन सी कि ये थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जनरली जो ये 0-0 वाले लेवल स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 50, ठीक है, जहां पे भी 50 है, तो 50 वाले स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सा लिक्विडिटी या फिर वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू द 100। दिस इज नॉट सम फैक्ट, कोई थ्योरी नहीं है, बट स्टिल, ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, अगर मेरे को ये सारी चीजें दिख रही है
I will go as a seller, I will go with the delta between 0.15 to 0.20. तो I can see this one and this one, जिन तीन के साथ मैं जा सकता हूं, right? So I can go with 25,300 as a seller, ठीक है? तो अगर मैं इसको सेल कर सकता हूं, if I'm making a triangle, so what can I do? अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैंगल बना रहा हूं एज अ सेलर, तो मैं सेल कर दूंगा 25,300 को, बिकॉज यहां पे मेरे को डेल्टा 0.14 का दिख रहा है एंड करंटली माय प्रीमियम इज 17.95 मेरे को दिख रहा है, राइट? सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो विद दिस ओटीएम ऑप्शन, जहां पे माय प्राइस विल नॉट मूव दैट मच एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज लो, ठीक है, कि इट विल एक्सपायर इन द मनी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी जो कब है, 17 को है, तो 17 को देयर आर मोर चांसेस दैट दिस स्ट्राइक प्राइस विल एक्सपायर आउट ऑफ द मनी, तो देन एज अ सेलर आई विल गेट द प्रॉफिट, मेरे को मिलेगा वहां पे, ठीक है? तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे स्ट्रैंगल बनाने जाऊं, तो मैं कॉल साइड पे इस वाले को बेच सकता हूं एंड इन द पुट साइड व्हाट कैन आई डू, आई कैन सेल, ठीक है, द डेल्टा। तो मैं यहां पे देखूंगा, तो मेरा डेल्टा मेरे को ये दिख रहा है, दिस इज माय डेल्टा, तो यू कैन सी 0.17 मेरे को दिख रहा है, 0.22, 0.13, सो आई कैन गो विद 0.800 का स्ट्राइक प्राइस, जिसको मैं सेल कर सकता हूं, राइट? तो आई कैन मेक अ ट्रायंगल कि इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट और इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, राइट? सो एट दैट टाइम आई विल हैव अ प्रॉफिट, जब तक मेरा मार्केट इसके बीच में घूमेगा, एंड एज अ सेलर आई विल गेट द मेरे को वहां पे फायदा होगा, बिकॉज दोज स्ट्राइक प्राइसेस का ऑप्शन जो होगा वो उनसे नीचे एक्सपायर होगा, ठीक है, राइट? तो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है, कि आपको एज अ सेलर कौन से स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बायर्स, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर्स नाउ, ठीक है? नाउ एज अ बायर व्हाट आई वांट माय प्रीमियम, ओके, तो इट शुड एक्सपायर इन द मनी, एक्सपायर होना चाहिए, व्हाई? बिकॉज ओनली देन आई विल गेट द बेनिफिट, अदरवाइज जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो क्या हो जाएगा, जो मेरा प्रीमियम है इट विल बी एक्सपायरिंग वर्थलेस, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द एटीएम प्राइस ऑल्सो, ठीक है, तो इट विल ऑल्सो एक्सपायर जीरो, ठीक है, जो इसका वो प्रीमियम है ये भी जीरो हो जाएगा ऑन माई एक्सपायरी के दिन पे, ये भी जीरो हो जाएगा, राइट? सो व्हाट आई वांट, मेरे को चाहिए कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, मेरा जो प्रीमियम है, इट शुड एक्सपायर इन द मनी, राइट? तो इफ आई सी 0.48, 0.57, 0.65 व्हेन आई एम गोइंग इन द मनी, सो इन द मनी में मेरा जो प्रोबेबिलिटी है द मार्केट विल एक्सपायर इन द मनी, दैट इज इंक्रीजिंग, इट मींस आई विल ट्रेड इन द मनी में मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं पुट साइड में ट्रेड कर रहा हूं, इफ आई एम गोइंग फॉर द पुट बाइंग, सो आई विल ट्रेड at this side, right? I will trade in the money, right? Now there is one more thing that you have to take care of, right? कुछ लोग सोचेंगे ठीक है, अगर इन द मनी में ट्रेड करना है एंड इफ इट इज शोइंग मी द प्रोबेबिलिटी, सो आई विल टेक दिस वन, ठीक है, जिसकी 0.98 प्रोबेबिलिटी है, आई विल टेक दिस वन, बट देयर इज वन मोर थिंग, राइट? If I am taking this delta which is having 0.99, it means if my for example Nifty का spot price, if it will change by 1 point or if it will move by 1 point, so at that time my premium will change by 99 पैसे, 99 पैसे से my premium will increase, right? But at the same time if my Nifty will fall 1 point, at the same time it will also fall by 99 पैसे, ठीक है? तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा, so that is what you have to take care of, ठीक है? तो ज्यादा ITM में भी नहीं जाना है, right? So what you will choose ITM options पे मैं choose करूंगा, but in the ITM options also I will not go that much beyond, इतना नहीं जाऊंगा, you can just select one ITM above or 2 ITM above, you can trade with those strike prices when you are trading as a buyer, you can say, ठीक है? So when you are trading as a buyer, so at that time I will have a benefit of delta, as well as a buyer you have to take care of that thing, why? Because theta is not in your favor, पे आपके नहीं होगा, so as a buyer the theta will also not be in your favor, ठीक है? तो जितना ज्यादा आपका टाइम होता रहेगा the premium will be decaying, क्योंकि आपका थीटा भी वहां पे डिके हो रहा है, ठीक है? This is your theta also, so you can see आपका जो थीटा है, तो ये भी आपका क्या है, इन वाले स्ट्राइक प्राइसेस में it is way more than जितना आप नीचे जा रहे हो, ठीक है? तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गो दैट मच बियॉन्ड, ठीक है, और इतना ज्यादा पास भी नहीं रहोगे, ठीक है? सो व्हाट यू विल गो, अगर आप ज्यादा पास रहोगे इट मींस द प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग विद दिस वन, राइट, इफ यू आर गोइंग विद द एटीएम ऑप्शन के साथ अगर आप जा रहे हो, सो इट इज हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, 50-50, ठीक है? इधर एट के इट कैन एक्सपायर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी भी हो सकता है, बट इफ आई चूज दिस वन 25,000 को अगर मैं चूज करता हूं, सो करंटली व्हाट आई वांट एज अ बायर, आई एम टेलिंग यू कि माय मार्केट इट शुड बी
इट शुड बी ग्रेटर देन 25,000, राइट? तो यहां पे मैं देख सकता हूं ऑलरेडी 25,000 से ऊपर है, सो एज अ बायर आई एम गेटिंग अ बेनिफिट इन ITM options, right? So you can go with this option as a buyer ITM, as a seller OTM, and I have also showed you कि क्या क्या आपके डेल्टा के वहां पे चीजें रहने वाली हैं, राइट? सो थैंक यू गाइज, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा. दैट वाज बेस्ड ऑन द डेल्टा. नाउ इफ यू आर लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत. हैव अ गुड डे.